Assalamualaikum students, this is Miss Nosheen. Welcome to online class of English and I hope you all are fine and safe at your home. So students, today our topic is narration. So what is narration? The word narration has been derived from the word narrate. नरेशन का जो वर्ड निकला है वो निकला है नरेट से, विच मीन्स टू डिस्क्राइब. इसका मतलब होता है डिस्क्राइब करना या बयान करना. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन. फर्स्ट वन इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच and the second one is called indirect speech. So what is direct speech and what is indirect speech? Direct speech means to convey the exact words of the speaker. And indirect speech means to convey the words of a speaker in your own words. ठीक है. Direct speech to convey the exact word of a speakers, or indirect speech to convey the words of a speaker in your own words. For example, she says, comma, inverted comma, I love Pakistan. That is direct speech. And indirect speech, she says that she loves Pakistan. This is indirect speech. What is direct speech? To convey the exact word of a speaker. For example, she says, I love Pakistan. Or indirect speech means to convey the words of a speaker in your own words. For example, she says that she loves Pakistan. अब करना ये होता है कि हमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है. तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं. बट before learning that rules, there are some key points that you must know. डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने से पहले कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास दो पार्ट होते हैं. फर्स्ट पार्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले एंड सेकेंड पार्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर. ठीक है. तो जो पार्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले होता है दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब. While the other part is called reported speech. ठीक है. डायरेक्ट स्पीच के हमारे पास दो पार्ट हो गए. एक पार्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले विच इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा पार्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एंड दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. रूल नंबर 1 इज इफ योर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस. If your reporting verb is in present tense, then following changes will be made in reported speech.
ठीक है. रूल नंबर 1 क्या है? इफ़ योर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस देन फॉलोइंग चेंजेस विल बी मेड इन रिपोर्टेड स्पीच. एंड व्हाट आर दोज चेंजेस? लेट्स सी हियर. Commas means comma and inverted comma will be replaced by that. Say to or says to will be replaced by tell or tells. Pronoun changes as per rule. And last one is no tense changes. ठीक है. So I'm repeating. If rule number 1 is if your reporting verb is in present tense then following changes will be made in reported speech. First one is commas will be replaced by that. Say to or says to will be replaced by tell or tells respectively. Pronoun change as per rule. No tense changes. टेंस चेंज नहीं करेंगे रूल नंबर 1 में हम. रूल नंबर 2 में हम टेंस चेंज करते हैं. ठीक है. और जब रूल नंबर 2 करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा टेंस को किस में चेंज करते हैं हम. ओके. और वन मेन थिंग, ये जो रूल नंबर 1 है हमारा, ये सिर्फ और सिर्फ असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए होता है. रूल नंबर 3 जब हम करेंगे तो उसमें इंटेरोगेटिव और फिर बाकी दूसरे सेंटेंसेस करेंगे. ठीक है. तो आपको याद रखना है रूल नंबर 1 जो इम्प्लीमेंट करेंगे हम वो सिर्फ और सिर्फ असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए करेंगे. ओके. नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स. Example number 1 is she says to me, comma inverted comma, I go to school daily. Full stop. Example number 2. He says to me, comma inverted comma, you do not play well. ठीक है. Example number 3. They say comma inverted comma, he gets up early in the morning. Okay. Here I have written down 3 examples and now we will convert this direct speech into indirect speech by following the rule number 1. Okay. She says की जगह says to की जगह आ जाएगा tells. She tells me, comma inverted comma की जगह आ जाएगा that. I की जगह यूज़ करेंगे हम she. She tells me that she goes to school daily. ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 1 को हमने कन्वर्ट कर लिया इनडायरेक्ट स्पीच में. शी टेल्स मी दैट शी गोज़ टू स्कूल डेली. सेज टू की जगह टेल्स. उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट. आई को हमने शी से रिप्लेस कर दिया है और जब आई को शी से रिप्लेस करेंगे तो गो के साथ ई एस का इजाफा कर देंगे अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ प्रेजेंट डेफिनिट टेंस. शी टेल्स मी दैट शी गोज़ टू स्कूल डेली. नाउ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 2. ही says to will be changed and tells. He tells me that I do not play well. ठीक है. Now look at example number 3. They say he gets up early in the morning. They say that
he gets up early in the morning. ओके, सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी इसमें सिवाय प्रोनाउन चेंजेस के। तो प्रोनाउन चेंजेस मैं आपको बताती हूँ कि प्रोनाउन चेंजेस के क्या रूल हैं और प्रोनाउन चेंजेस किस तरह से करते हैं। प्रोनाउन में हमारे पास 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, 3 पर्सन होते हैं हमारे पास प्रोनाउन के, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अच्छा, आपको ये बात भी याद रखनी है कि प्रोनाउन चेंजेस जो हम करेंगे वो रिपोर्टेड स्पीच में करेंगे हमेशा। रिपोर्टेड स्पीच में जहाँ जहाँ प्रोनाउन यूज़ होगा हम उसको चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज नहीं करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच जो हमारा कॉमा के अंदर वाला पार्ट है उसमें हम प्रोनाउन चेंजेस करते हैं। अच्छा, प्रोनाउन चेंजेस किस तरह से करेंगे, तो आपको सिंपल ये याद रखना है कि प्रोनाउन चेंजेस में अगर हमारे पास मतलब रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन है तो हम उसको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करते हैं। ठीक है, जब हमने आई को शी से चेंज किया तो शी आ गया यहाँ पे। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है, प्रोनाउन हमारा सेकंड पर्सन है, तो हम उसको अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं। इसलिए जब हमने यू को मी से रिप्लेस किया तो यहाँ पर आई आ गया। और अगर थर्ड पर्सन होगा तो थर्ड पर्सन नो चेंज, इसीलिए यहाँ पे ही की जगह ही है, हमने ही को चेंज नहीं किया। रिपीट कर रही हूँ मैं अपनी बात को, प्रोनाउन चेंजेस बहुत आसान है, जस्ट लिसन वेरी केयरफुली। प्रोनाउन चेंजेस में क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमारा प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है तो हम उसको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज कर देंगे, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा हम उसे चेंज कर देंगे। लेकिन अगर हमारा प्रोनाउन जो है वो सेकंड पर्सन है तो हम उसको अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने किया, यू को मी से चेंज किया तो यहाँ पर आई आ गया। इसीलिए इसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोनाउन चेंजेस हमारे पास प्रोनाउन चेंजेस में हमारे पास थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, थर्ड पर्सन को हम वैसे ही लिख देंगे। ओके, अच्छा, प्रोनाउन चेंज करते वक्त आपको ये भी ख्याल रखना है कि प्रोनाउन चेंज तो हम कर रहे हैं, जैसे सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रोनाउन के केसेस भी याद रखने हैं। केसेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जब हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस किया था तब मैंने आपको सिखाया था कि केसेस प्रोनाउन के कौन कौन से केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो आपको वो वाला पॉइंट भी याद रखना है कि प्रोनाउन चेंज तो हम इस रूल से करेंगे कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से, सेकंड को ऑब्जेक्ट से, लेकिन जो केस हमारे पास यूज़ हो रहा है, मीन्स दैट अगर सब्जेक्टिव केस यूज़ हो रहा है तो हम उसका सब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव यूज़ हो रहा है तो हम उसका ऑब्जेक्टिव यूज़ करेंगे। अब जैसे यहाँ पर हमने यू को मी से चेंज किया, लेकिन यू हमारे पास सब्जेक्टिव केस में है तो हम मी का भी सब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ पर आई यूज़ किया। ठीक है, ओके, आई होप आप लोगों को प्रोनाउन चेंजेस और बाकी सारे चेंजेस अच्छे से समझ आ गए होंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम इसका रूल नंबर 2 करेंगे। रूल नंबर 2 में और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगी, इसलिए आप लोग रूल नंबर 1 की अच्छे से प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा आपकी परफेक्शन होगी। और फिर अगर आपको रूल नंबर 1 अच्छे से समझ आ जाएगा तो रूल नंबर 2 को आप मिक्सअप नहीं करेंगे। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की तो फिर ये होगा कि जब हम रूल नंबर 2 करेंगे तो आप रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को मिक्सअप कर देंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।